The holding of the 2010 Commonwealth Games was somewhat of a watershed in the history of modern India. While it showcased India's position on the world stage, it also exposed its contradictions. The uplifting message of the many exceptional athletic performances was overshadowed by the gigantic scams. And the ruthless efforts to hide the poor, whether by banishing them or by just covering their presence with large billboards, painted a picture of a society in constant denial of its reality. A country that has 69 billionaires and 500 million people below the poverty line, an annual GDP growth in double digits, 119th rank in the Human Development Index, $1 billion home for one family, and not enough food for 230 million, the highest number of malnourished people in the world. But we do not need the UNDP reports to know all this. We just need to step out a bit to see this other India in ever-increasing contrast to the IT, big metro, mall, Bollywood bubble. The reason for this is that this growth, while undoubtedly benefiting some, has come at the expense of the larger majority. As expected, the policies facilitating this boom are being opposed all over India and are finding the most violent expression in the Naxalite movement that has engulfed almost a third of its districts. Now, while speaking on the Naxal terror issue, the Prime Minister reassured that the Planning Commission will formulate a comprehensive development scheme for Naxal-affected states. हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है। As late as last August, during his Independence Day address, the Prime Minister again identified Naxalism as the most serious threat to internal security. Earlier, in 2009, the central government had launched Operation Green Hunt, a concerted action at several levels, essentially setting the nation's military on to its own citizens. Sometime later, as the social activist Swami Agnivesh tried to mediate, a senior Naxalite leader coming to join the meeting was mysteriously killed in an encounter under questionable circumstances. To top all this, in January of 2011, a Chhattisgarh court sentenced the internationally renowned human rights activist, Dr. Vinayak Sen, to life imprisonment, apparently for supplying some information to the Maoists. The trial seemed highly biased, and the sentence was widely criticized in view of the little, if any, demonstrable damage from his supposed crimes compared to the massive crimes against the Indian nation by corrupt politicians that regularly go unpunished. What is going on in Chhattisgarh? The government is under threat, the media is in serious trouble, the corporates are in serious trouble, the judiciary is hollowed out. We are all in very serious trouble, and unless we look at it structurally and systemically, we don't look to put a little ointment on the latest boil. और वो डिपोज कर रहे हैं कोर्ट के अंदर साफ साफ कि कोई भी इंक्रिमिनेटिंग काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। वो इस केस में कह रहे हैं जेल अथॉरिटीज कर रहे हैं, लेकिन जेल में मिलने की चीज को लेकर के और उनको आजीवन कारावास दिया जाए। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रहिए, आप कुछ भी रहिए, उनकी सरकार की हामी यहाँ नहीं मिलाएंगे तो आप गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। सरकार को क्रिटिसाइज करना देश की गद्दारी मान ली जाता है। However, the root cause of this malady is not the lack of development, as opined by the Prime Minister, but rather the specific development policies
that are driven by the imperative of a growing GDP fueled by high profits. नलेश्वर तालाब है, ये ब्रिटिश समय से ये तालाब है और यहाँ पे बहुत सालों से जो गांवकरी है, गांव वाले हैं, वो मच्छीमारी करते हैं। इसको सरकार ने फिशिंग राइट्स को लीज पे दे दिया है और एक बाहर का एक ठेकेदार है, उसने इसका फिशिंग राइट्स लिया है। तो वो क्या करता है कि जो गांव वाले हैं उन्हीं से मच्छी पकड़वाता है और उन्हीं का जाली भी उन्हीं की, मेहनत उन्हीं की, और उनको 20 रुपए 40 रुपए ऐसा देके उसके मच्छी लेके चले जाता है। आपको 20 रुपए देता है? 20 रुपए किलो। 1 किलो का? वो आपको कुछ अंदाजा है कि कितने की बिकती है बाहर जाके? बाहर जाके 100-150। 80? उसको अभी ये 80 रुपए 100 रुपए बता रहे, लेकिन बाहर मार्केट में जैसे रोहू वगैरह कतला बड़ा वाला तो 150 रुपए 200 रुपए में भी जाता है। दूसरी बात क्या है कि अभी ये आधा जो इसका हिस्सा है तालाब का, तो वो ये ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पहले वो उसकी बाउंड्री दूर थी, तो जो तालाब था ये गांव वालों के अंडर में जुरिस्डिक्शन में था। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग बफर जोन बढ़ाएंगे और आधा तालाब बफर जोन में इन्होंने ले लिया है, तो वहाँ मच्छी मारी के लिए प्रॉब्लम आ रही है, फिशिंग के लिए। तो अभी जैसे 1.5 महीना पहले मच्छी मार जो फिशिंग के लिए गए हुए थे, इनकी जाली वगैरह सब फॉरेस्ट वाले उठा के ले गए और उनको वापस भी नहीं कर रहे थे। उनको धमकी दे रहे थे, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुमको हम बेड़िया बांध के ले जाएंगे। मतलब बहुत परेशानी में थे, क्योंकि जाली निकल गई मतलब उनका रोजी रोटी का साधन निकल जाता है ना, और डर दहशत हो जाती है कि अब यहाँ नहीं आ सकते, और ये नहीं करेंगे तो दूसरा कोई व्यवसाय भी ऐसा नहीं है ना, क्या करेंगे। फॉरेस्ट वालों से फिर काफ़ी बातचीत हुई, फिर दिवाली के दिन वो सब जाली वगैरह वापस उसने लाके दिया है। तो अभी हम ये 1-2 चीज़ ऐसा, अब कल मीटिंग हुई मोहाड़ी में, तो ऐसी बातचीत ऐसी चल रही है जो फिशिंग राइट्स लीज पे दिया है, तो ये राइट्स जो गांव वालों की जो सोसाइटी है उन्हीं को मिलनी चाहिए। आखिर ये उनका लाइवलीहुड है और वो पहले हकदार है, यही रहने, काम भी वही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि फॉरेस्ट वालों की जो बफर जोन है वो आप अपने पास रखो, चाहे कुछ करो, लेकिन जिनका यहाँ पारंपरिक जो व्यवसाय है वो कैसे चेंज करेंगे उसका। नहीं तो या तो सरकार इनको कुछ सरकारी नौकरी दे दे और एक को कुछ कलेक्टर एसपी बना दे तो बात अलग है, नहीं तो कहाँ जाएंगे, लोगों को तो मच्छीमारी करना ही है। तो यहाँ कोऑपरेटिव नहीं। To maximize profits, one must either secure a higher price or minimize the input costs. In a relatively globalized economy, the former is difficult. So you minimize the costs by squeezing labor, mechanizing production, outsourcing where possible, and most importantly, getting the raw materials as cheaply as possible. No wonder then that today the most lucrative businesses in India are those involving the exploitation of natural resources, because you can get them at throwaway prices. The only thing you have to do is get some of the key decision makers in on the take. Unfortunately, the people who are dependent on those resources have no role in that decision making, and yet they must be moved out. These people, thus, are caught between a rock and a hard place. They are being forced to abandon their traditional lifestyle that has sustained them for centuries. And yet, lacking education or skills, they have no place in India's booming economy. Their difficulties are further compounded by the rampant corruption that turns most rehabilitation schemes into a sham. केते जुग केते पाठला आमे थिलु एई फलमूल खाउथिलु एई पानी पवन बाजुथिला कोनसी जगह ने खरा बोली जानी होथाई नै किबा ठंडा बोली जानी होथाई नै से हिसाबे थिलु एबे हम के ई जगहटा 15 मास के भटारे फिकला पर फिक दी जिबा नियमगिरी पहाड़ नेले आमे केंती हिसाब बंचबो। तो ये बोल रहे हैं
कि हम आज से इतना साल हो गया छोटे से मेरा पिताजी मेरा दादाजी सब लोग यहाँ पे रुके थे। तो हमें यहाँ पे कभी ना बारिश का ना खराब लगता है, ना धूप का खराब लगता है, ना ठंडी का कभी हमें खराब लगता है। तो हम अभी तक तो हमें कुछ खराब लगा ही नहीं। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे रुके हैं। अगर हमको वो आके अगर बाहर कहाँ अगर भेज देगा तो हमें वो कैसा लगेगा, हम वहाँ पे ठीक रह पाएंगे? वो तो हम रह नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पे जितना जो अच्छा जिनिस मिल रहा है वहाँ पे हमें कुछ मिलेगा नहीं। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम पूरा विरोध कर रहे हैं। ये जंगल हमारा सब कुछ है, माता पिता सब कुछ है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। कभी शहर गए हैं आप? नहीं दूर से दूर कितनी दूर तक गए हैं? हमें जाइए पुरी तक गए हैं। पुरी तक तो गए ना। तो जैसे पुरी में जो होता है उसमें से आपको कुछ भी चाहिए? तो मुझे पूरी जैसे लोजन अच्छे तुम दरकार नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। नहीं। और जो आपके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई आपको लगता है होनी चाहिए? नहीं। आपको पढ़ाई नहीं चाहिए? नहीं, तुमको तुम जो पिला मन जन अच्छे तांकर लगी पढ़ा पढ़े वाले तुम इच्छा तुम अच्छे कि नहीं ना? है बोल रहे हैं। हाँ, पढ़ाई चाहिए। तो वो तो वही सिखाते हैं जो पूरी में है, तो आपके बच्चे वही सीखेंगे। तो अच्छे भल जिनिस बने प्यान कोते तुम भल पैंट शर्ट पिंदो, भल जिनिस ने धरो डेन शर्ट तुमको शर्ट तुम सब लोग तुमके शर्ट सब सिखाउथिबे। तो से पिला ने तुम काना बोलसन? से पिला माने आसी कर किछि कोन उसको सिखाते हैं लेकिन वो आके कुछ बोलते नहीं चुपचाप। पैसा क्या कुत्ता कमाता है, पैसा क्या करेगा? हम पैसा हमारा नियमगिरी रहना से अच्छा से है। समाज में पूरे समाज के विकास के लिए हमारे समाज में भी एक व्यवस्था है, पारंपरिक उसका संस्कृति है। ये खेती करने वाले ये समाज नहीं है। अभी ये दूसरों की देख के अभी कर रहे हैं। ज़्यादा जंगल का कंदमूल फल और वो मछली पकड़ना और शिकारी भी करना, लेकिन अकेले नहीं। और किसी का मकान बनाना है तो सब पीना वो देगा, वो खाना होना पीना वो देगा। किसी का खेत बोना है तो वो भी देगा। वो घास भी जंगल में काटने की जाएगा तो सब लोग मिल के जाएंगे और उनको गांव में लाके उसको बंटवारा करेंगे। ये एक जैसे कि परिवार जैसे इनका एक, और समूह में जाते हैं सब बहुत आनंद लगता है, गाते बीते भी काटते समय। इसमें से क्या होता है कि भाई एक आदिवासी का जो व्यवस्था है वो व्यक्तिगत नहीं है, जीना है व्यक्तिगत नहीं है, समूह से। और इनका प्रॉपर्टी भी ऐसा दिखता है कि व्यक्तिगत नहीं है। और जो युवा होता है वो माँ बाप जो है ये जन्म देने के लिए है, लेकिन वो लड़की और लड़का ये गांव की संपत्ति है। किसी के पास बैल होगा, गाड़ी होगा, ये उसके नाम पर तुम्हारे नाम पर है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, वो गांव का है। और ये प्रकृति को संभाल के रखने वाले ये लोग हैं, प्रकृति नष्ट करने वाले नहीं हैं। जितने ज़रूरत है उतने ही जंगल से भी वो लाएंगे, ज़्यादा वो लाते नहीं। तो जितना अपने घर में उगाएगा कुछ तो बाजार में बेचने के लिए नहीं लेते थे, खुद ही खाने के लिए एक दूसरे को ऐसा बांट देगा। बाजार से भी खरीद कर वो लोग नहीं लाते। आज़ादी मिलने के बाद जो गाँव में ये लोग आए कि भाई हम तो अंग्रेजों का गुलाम पे है, इनको आज़ादी क्या है और गुलाम क्या है ये किसी को समझ में नहीं आया। तो वोटिंग क्या है ये भी इनको पता नहीं था। ये वोटिंग करने से क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि भाई जंगल माफ़ी मिलेगा, मवेशी चराने के माफ़ी मिलेगा, ज़मीन मिलेगा। तो लोगों ने बोला कि ये तो ठीक है, सब माफ़ी मिलने वाला है। उस समय ब्रिटिश का ज़माने में ये जो जमींदार था वो हर गांव के लोगों को उनको बिगार कहते थे, बिना मजदूरी से उनको मेहनत लेते थे। इसमें बोला कि ये तो ठीक है, फिर स्वतंत्र होगा। तो आज़ादी हुआ तो पहले यहाँ जो गांव स्तर पर कि वन विभाग के अधिकारी पहुँचते, उसके बाद वो तलाटी, टीचर, ग्राम सेवक,
ये इतने कर्मचारी गांव में पहुंच गए। और उसी समय वो गोटुल व्यवस्थित था, वो कोई बाहर का आदमी आ जाएगा तो किसी का घर में नहीं जाता था, वो गोटुल में ही रहते थे। बाद में क्या हुआ कि भाई वो गोटुल भी नष्ट हुआ, तो फिर वो पटेल था, गांव का मुखिया है, मुखिया के घर में जाके वो कोई अधिकारी आए तो उनको खाना भी वो खिलाया, सब खिलाया। तो उन्होंने वहाँ से शुरू कर दिया कि भाई अभी पटेल साहब, ये जो तुम्हारा जंगल है, ये जंगल अभी तुम्हारा नहीं है, इस सरकार का हो गई है। यही एक मौका है कि आप जंगल से लकड़ी काट के आप मकान बनवा दें। उनको तो मौका दे दिया है, लेकिन गरीब आदमी जो जाके लकड़ी काट के लाते हैं तो उनको उन्होंने पकड़ने का शुरू कर दिया। और वही पटेल को वहाँ गौवादार, जमीन का पट्टा कौन देता है तो पटवारी देता है। फिर पटवारी के कि किसी को ज़मीन होना तो हमको पूछेगा, जंगल से लकड़ी लाना है तो वन विभाग के अधिकारी को पूछवाएगा। एक ही गांव में नहीं, पूरे एरिया में ऐसा ही हुआ। तो फिर लोगों एक कट्टा के बैठने लगा, विचार करने लगे। कुछ इधर के पुढ़ारी लोगों ने मोर्चा निकालने का कोशिश किया, लेकिन जितना लोगों का ये हुआ था, मोर्चा निकालना और चिल्लाना ये हुआ था, उतना ही फोर्स शासन से ज़्यादा दबा देता था इन लोग। बाद में जो ऐसा हुआ कि एक रिवाज बन गई कि भाई वन विभाग के अधिकारी को कुछ देने बगैर हम जंगल से नहीं उठा सकते। वो मुर्गी भी देते थे, शराब भी देते हैं, अनाज भी देते थे, पैसे देते थे। तलाटी को भी, वो पटवारी होता है ना, उनको भी देते थे जमीन पट्टा में। फिर बढ़ते जाता था, फिर गांव की संगठन ही टूट गई। और यहाँ का सिस्टम अलग इस था कि और रास्ता बनाना है तो गांव वाले बना देते, पीने का पानी का अगर व्यवस्था करना है तो सब लोग मिलके जाएंगे और कुआं खोद डालते थे। वो हम देखा है बचपन से। लेकिन ये जो शासन का व्यवस्था जब आई तो ऐसा एक मानसिकता तैयार हो गई कि भाई ये सब सरकार करेगी, हम कुछ नहीं सकते। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग भी गांव में आके सब गांव को तोड़ लिया। शराबबंदी करने के लिए यहाँ भी बहुत सारे, मेरा जन्म का पहले से ही इस गांव में शुरू किया था, लेकिन शराबबंदी नहीं हुआ। लेकिन आदिवासी का जो शराब का पीने का एक पद्धति था कि भाई वो खरीद कर नहीं पीते थे, वो खुद बनवा कर पीते थे। एक तरफ तो सरकार का यहाँ फिर शराब का दुकान शुरू हुआ, धंधा जो लोन का देख के फिर ये भी धंधा शुरू कर दी। इसमें ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा से ज़्यादा शराब बढ़ने लगा। और जो शराब ज़्यादा है तो फिर इसका झगड़ा भी बढ़ गई। जब बुजुर्गों के पास हम लोग चर्चा करते थे, बुजुर्ग बोलते थे आपस में, तब वो जो ब्रिटिश का काल था ना, उसी समय हम लोग स्वावलंबी, स्वतंत्रता और शांतता, ऐसे प्रेम से हम जीते थे गांव में, एक परिवार जैसे। भले उस समय में वो देश गुलाम था, लेकिन गांव स्वतंत्र था। झगड़ा भी बढ़ गई। Hence, they resist. And that places them in opposition to powerful forces, the state machinery, a compliant media, and the big industry houses with unlimited resources to bribe, intimidate, or break their movements in a variety of other ways. तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग जब आंदोलन किए तो उस समय किनारी गांव जो था, किनारी गांव को जब जो उठा के कंपनी जो ले गए और बोले कि तुम लोग यहाँ से निकलो, हम तुम लोग को कुछ पैसा देंगे। कभी पहले बार तो कभी उनके पास कभी पैसा देखे नहीं थे वो लोग, तो उन लोग को थोड़ा लालच हो गया, तो वो लोग कितना पैसा लेके वो चले गए। जब चले जाके वो लोग जब आए तो उस समय कंपनी ने कहा कि तुम्हारा ये जगह छोड़ दो और तुम वहाँ चलो। ऐसे बोलने से वो लोग मना कि क्यों हम चलेंगे वहाँ पे, हम तो ये जगह छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारा ज़मीन है। से बोलने से कंपनी बोला कि तुम लोग जाओ वहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर बना के रखा हूँ, जो वेदांत कॉलोनी जो है वहाँ पे मैं तुम लोग को रखूँगा। तो ये लोग जब मना करने से ज़बरदस्ती सारे जो किनारी गाँव का सब लोगों को ज़बरदस्ती मार के पूरा खेद देते वहाँ पे। तो विरोध करने से हम लोग सब जो विरोध किए उस समय लाठीचार्ज हुआ और लिंगराज आजाद को थाना को ले गए। थाना को लेने के बाद जब ये लोग गए लिंगराज को छुड़ाने के लिए, तो लांजीगढ़ का जो कंपनी का जो लड़के लोग जो हैं वो लोग हॉकी स्टिक, बेड और विकेट लेके आए थे हम लोग को मारने के लिए। और बहुत औरत लोग को बहुत मारे, मेरा साइकिल भी तोड़ दिए और इतना मारे कि 1-1.5 महीने के लिए औरत लोग उठ नहीं पाए, इतना जो से वो लोग मारे थे।
और उसको पुलिस सपोर्ट किया था, तो उसमें दो लेडीज वो मर गए थे। उसके बाद कंटिन्यू रैली स्टार्ट किया गया। रैली करने के बाद हम कलाहांडी का जो 13 जो ब्लॉक है वो सब ब्लॉक हम ऑर्गेनाइज किए कि ये लांजीगढ़ में ऐसा हो रहा है, कंपनी तो अभी तक आया नहीं और किनारी गाँव, बंदूड़ा गाँव, केंदुड़ा गाँव, इन सब लोग को ऐसा मार रहा है, कंपनी रहने से कैसा होगा, ऐसा बोल के हम 13 ब्लॉक को हम जाके एजुटेशन किए और कलेक्टर को भी मेमोरेंडम दिए और नवीन पटनायक को मेमोरेंडम दिए। ऐसे बात नहीं सुनने से उसके बाद हम लोग गए विधानसभा। लांजीगढ़ में रेबिडेशन कॉलोनी बनाए हैं सब लोग के लिए, ठीक है। जैसे जो बोल रहा था वो जितने गाँव उठा के रखे हैं उन लोगों के लिए दिए, और हमारा गाँव में एक ही आदमी जाके भी वहाँ पे काम किया ही नहीं, तो वो क्या ठीक काम कर रहा है। हमारा कलाहांडी में आएगा, हमारा उड़ीसा में आके हमें कुछ नौकरी देगा नहीं, तो वो क्यों यहाँ रहेगा। तो टूरीगोड़ा का सब साथी को अगर काम देगा तो हम कंपनी को रखेंगे। पहले बोल रहे थे ना अगर जॉब मिल जाएगा तो आंदोलन छोड़ देंगे। सबको मिलेगा तो हम सोचेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सोचेंगे बोले, क्योंकि कंपनी तो सब लोग को जॉब देगा नहीं ना। मान लो दे देता है 1 मिनट के लिए। हमें तो किंतु मूर्ख लोग हम कौन सी चाकरी करी पारबो सेठी। हां हमके हॉल नंगल तिले आराम से जॉइन बाड़तिले आराम से हम चास उठे हमके चाकरी कौन सी आशा नहीं। हम तो किंतु मूर्ख लोग। क्या बोला? ये बोल रहे हैं तो हम तो कुछ पढ़ाई लिखाई हम किए नहीं, तो हमें अगर जॉब देने से हम क्या काम करेंगे। हमें जॉब देने से हम कुछ काम कर नहीं पाएंगे। हमारे लिए खेती बाड़ी ठीक है, खेती बाड़ी से हम लोग ठीक रहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी क्या कंपनी बोल रहा है कि चलो वहाँ पे एक रास्ता बन रहा है तो उसके लिए तू काम ले ले, तो सब लोग को वो बता रहा है कि तुम लोग मत करो यार। वो भी कुछ कितने लोग दारू पी रहे बोल रहा है तुम काम ये वेदांत के अगेंस्ट में मत लड़ो, सपोर्ट में आ जाओ, मुझे जैसे काम दिया है तुम्हें भी ऐसे काम देगा। से दिन ठू वेदांत कंपनी आम गाँठ तौल पट के ऊपर के छोड़ता नहीं। ये बोल रहे हैं कि वेदांत हमारा कुछ भरोसा नहीं। जैसे कि अभी एक काम वो करवाए थे, वो एक काम में क्या हुआ जो रास्ते का, तो उसको 20,000 रुपया दे, चलो काम करो फिर बाद में आपको दूंगा। ऐसा बोलने से क्या हुआ, हम लोग पूरा काम कर दिए। फिर उसके बाद और 3 महीने के बाद और 10,000 रुपया दिए, तो बोले चलो हम काम कर दे। तो हम लोग वो काम करने लगे और काम पूरा बहुत हो गया। बहुत होने से लेबर लोग हमको पैसा देना चाहिए, तो वो हमें फिर पैसा दिया ही नहीं। जब बोला कि तुम कंपनी को सपोर्ट करो, हम सपोर्ट किए नहीं, तो वो हमें पैसा दिया नहीं। जितना लेबर काम करवाए थे आधा पैसा हमें भरना पड़ा। तो कंपनी ऐसा है, अभी हमें 10 देगा, काम करेगा 10 देगा, बाद में हमारा 30 ले लेगा। पहले फायदा होगा, बाद में तो कुछ नहीं मिलेगा हमको। हाँ, सही हम नंगा होने वाला है। हमारा खेती बाड़ी दे के हम नंगा होके बाद में भीख मांगेंगे। रायगढ़ पे किसकी मीटिंग थी? ये जो नियमगिरी सुरक्षा समिति का। तो वो जो मीटिंग था तो शुक्रू भाई वहाँ पे अरेंज करके वो आ रहे थे, तो वो जल्दी जो आ रहे थे तो कंपनी की गाड़ी ने धक्का मार के उसको चला गया पूरा। ये बोल रहे हैं जब हम लोग जो 2006 में जो रैली किए यहाँ से जो पुलिस स्टेशन को घेराव किए थे हम लोग, और वो लोग बोला था कि ठीक है अगर कंपनी अगर इसको मारा है तो हम डिस्कस करेंगे और बोलेंगे कि आपका जो हस्बैंड जो मरा है उसके लिए कुछ क्षतिपूर्ण दिया जाएगा। तो ऐसे बोलने से हम लोग वही एजुटेशन से हम निकल बाहर आ गए। लेकिन अभी तक इन लोगों को 1 ही रुपया इन लोगों को मिला ही नहीं। बल्कि ये जो बोलते हैं कि ठीक है मेरा जो फैमिली है, मेरा जो छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए कुछ काम, उनके लिए उसके जीवन के लिए, एक जीविका के लिए मुझे कुछ काम दी। कितने महीने हो गए? अभी तो हो गए 4 साल हो गए। जीवन को ना का नाम चंपा हो, लड़के का नाम शिवो, लड़की का नाम चंपा, और एक लड़की रोनी। कितना भत्ता बताया आपने? 200 रुपये। 200 रुपये विधवा पेंशन। हाँ, महीने में। तो वो तो सरकार से है ना? हाँ, होता है सरकार से। तो तीनों लड़कियों में 200 में क्या होगा, उनका कुछ होगा नहीं उनका। तो ये अभी पहाड़ के ऊपर जाके जो टूटा हुआ लकड़ी को लेके नीचे आके बेचता है और फिर अपना, तो ये बोल रहे हैं वेदांत कंपनी जब एक महीने उसको 1000 रुपया दे, और बोले दूसरे महीने में बोला कि नहीं हम और देंगे नहीं, क्योंकि तुम आंदोलनकारी के साथ मिले हुए हो, उनके साथ तुम काम कर रहे हो और हम तुम्हें देंगे नहीं, ऐसे बोल के उनको पूरा कमा के खेत दी पूरा। हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो लेकिन अभी हम लोग चारों ओर जब आंदोलन जब बढ़ गया, चारों गांव हम घूमने लगे, तो हम लोग यहाँ पे आए नहीं पाए। लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, हो गया हम लोग। लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, आगे भी करेंगे, लेकिन हमें अभी इतना नॉलेज नहीं है कि हम आगे हम क्या करें। हम तो मूर्ख आदमी है ना, हम कुछ नहीं समझता। जो कानून बताने वाला कोई नहीं है, साथी नहीं होने से सर
ऐसे कैसे हो सकता है? साथी नहीं रहने से नहीं हो सकता। ठीक बात। पीछे कोई नहीं रहेगा ना, अकेला जाके कोई किसी का साथ बात कर सकते हैं? अकेला जाएंगे कहीं मार के फेंक देंगे, ऐसा आदमी भी है। वही मैं बोल रहा हूँ, हमको क्योंकि साथी चाहिए। The result is a volatile atmosphere of violence, counter-violence, and unimaginable atrocities. A fertile ground for the simplistic but highly dangerous Maoist philosophy to take root. And once violence becomes the chosen path, it is only a matter of time before even the most principled movement will devolve into thuggery and mayhem. Is there some way out of this mess? Most people are not happy with the way things are, while there are no doubt a few who are enjoying a lifestyle that would be the envy of the firstborn. Majority of the middle class, small enterprises, or those in the cities with jobs are barely making their ends meet. Opportunities for a decent living are still limited, and the competition for them is intense. The overall quality of civic life is deteriorating. Yet, most seem resigned to the system because they just don't see any alternative. In short, the Tina syndrome has paralyzed them. But there are others, admittedly not many, who refuse to accept the status quo. We in IFA have been fortunate to have befriended many such dedicated social activists who have been at the vanguard of positive social change, particularly in uplifting the underprivileged. This has not only allowed us to understand the problems better, but by helping them, we've been able to channelize our limited resources in the most productive way. Many of these groups are creating models of sustainable development and delivery of services to the poor. Others have been instrumental in the passage of such crucial laws, such as the Right to Information Act and the National Rural Employment Guarantee Act. Still others are involved in ensuring the proper implementation of these acts. While significant progress has been made, it is still very little, and creating joint fronts is felt to be a necessary condition for increasing the impact of such efforts. Indian Community Activist Network, started by IFA in 2007, has been a step in that direction. This year's 4th annual ICANN meeting in Tezu, Arunachal Pradesh, witnessed a substantial progress in achieving that goal. In spite of the remote location, about 40 activists joined from all over India to confirm their commitment. 6 IFA members also attended. Many more are expected to be part of this effort as it evolves. A major goal of ICANN is to generate resources in India for strengthening the work of the various constituents. A simple, non-registered trust that can collect funds in a bank account has been set up. Several ideas for fundraising are being explored. A full fellowship for ICANN work has been provided to Guru Raj Buddhaya. I'm hoping to see a lot of actions next year compared to this year. In the Tezu meeting, several areas of concern were identified and focus groups set up. One group will focus on the anti-corruption activities, including a strong push to get a proper Lokpal bill with some teeth, rather than the weak bill being proposed by the ruling party. Many activists will be joining in a large support rally on the 30th of January to open a common front against corruption. More than 90% of India's labor force is unorganized. This includes landless or marginal peasants, migrant construction workers, rag pickers, domestic workers, cycle rickshaw pullers, etc.
there are plans to organize these workers for better wages and better working conditions. Several of the IFA fellows are involved in this activity, and actions at a national level are being planned. Lastly, community ownership of natural resources has been taken up as a crucial goal. This decentralization, coupled with the empowerment of the Gram Sabhas, is felt to be the best way to minimize corruption, promote democracy, and reduce poverty. और इसका हम लोगों ने थोड़ा सोच लिया कि भाई हमारे गांव का जो एक व्यवस्था है और रिवाज था, पहले से ही ये बैठ के विचार करते थे। गांव के लिए पहले से ही बैठ रहे हैं। इस गांव का एक ऐसा एक नियम है, इसका शुरू से ही यहाँ जो होता है, यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। मैं 5 साल पंचायत का मेंबर बन चुके हूँ, लेकिन कुछ पंचायत का व्यवस्था है, कारोबार है, वो चलाने के लिए कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मोहन भाई के साथ रह के जो मेरा मन में ऐसा था कि ऐसा आदमी है क्या, कहीं तो दिखता नहीं, तो ऐसा जो बोलेंगे तो ऐसा चलेंगे बोलते हैं ना, वैसा आदमी कुछ दिखता नहीं। समय पर उसका ध्यान देने वाला आदमी, अमुक दिन में अमुक टाइम पर वहाँ होना चाहिए। इसमें घूमते घूमते फिर मेरा जो मन में था अध्ययन करने का, वो एक जैसे बंद कोले में अध्ययन करने से कुछ नहीं मिलता। हम जितना परिसर में घूमते घूमते रहेंगे ना, उतना ही उसका एक हवा भी अच्छे तरह से मिल जाता है। मधुमक्खी जो है हर फूलों से उसका रस मुक्त करता है, तभी उसको मीठा बनाता है। हजारों मक्खी एक परिवार जैसे रहते हैं, तो गांव में तो भाई भाई एक जगह नहीं रखते हैं। हर पेड़ भी बता रहे हैं, वो जानवर भी बता रहे हैं, जैसे मरब भी रहता है ना, वो भी उनसे सीखना है। क्या बता रहे हैं, अच्छे जीवन जीने के लिए कैसे जीना चाहिए, मधुमक्खी का समन्वय कैसे है, संबंध जंगल से है, पानी से है, जमीन से है, हवा से है, आदमी से है। तो आदिवासी का व्यवस्था वैसी है कि भाई आप भी जिए और दूसरों को भी जिए, और वो भी आज के विचार नहीं है, अगले का पीढ़ी वालों का भी विचार इसमें है। और शासन का व्यवस्था क्या है कि जंगल का बचाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे स्टाफ बढ़ रहा है वैसे जंगल खत्म हो रहा है, और जहाँ आदिवासी लोग हैं वहाँ जंगल बचा है। फिर इसमें हम लोगों ने ये किया कि ये जंगल सरकार नहीं बचा सकते हैं तो लोग बचाएंगे हम, और इसका हम निर्णय लिया कि हमारा जंगल हम रक्षा करेंगे, हमारा विकास, हमारा गांव, हमारा जंगल, हमारा जमीन, हमारा पानी, हम ही इसका व्यवस्था करेंगे। ठाकुरदास जी का भंग साहब का यहाँ पद यात्रा था, ये गाँव गाँव में हो सरकार, बांटो दिल्ली के अधिकार। दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार। लेकिन वो जो बामरागढ़ एरिया में, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली बम्बई तो हमारी सरकार रहेंगे, लेकिन हमारे गांव में हमारी सरकार नहीं, हमारे गांव में हम ही सरकार। सरकार कौन है, तुम और हम, तो हम ही सरकार। तो ये उस वाक्य देख के फिर यहाँ का जो निर्णय जो ये ले लिया सर्वसहमति इस गांव के लोग कि हमारे गांव में किसी को काम करना है तो ग्राम सभा का पूर्व परवानगी बगैर यहाँ काम नहीं करेगा। फिर वो सरकार हो, ठेकेदार हो, व्यापारी हो या संस्था हो, गांव की कारोबार चलाने के लिए हम सभी लोग प्रयत्न करेंगे। गांव की अड़चन है, समस्या है, तो व्यक्ति का समस्या है तो गांव की समस्या, गांव की झगड़ा है, ये गांव की झगड़ा गांव में ही पैसा ला करेंगे, पुलिस स्टेशन में नहीं देंगे। प्राकृतिक संसाधन को नष्ट न करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और यह प्राकृतिक संसाधनों पर हर आदमी का समान हक रहेगा। अपने काम के लिए सरकारी कर्मचारी या किसी को भी पैसा अगर देगा तो जितना पैसा देगा उतना ही हम रसीद देगा। This will require large-scale organizing of the villagers. Last year, on August 9, the day of Quit India movement, many concerted activities were organized all across India. Many more are being planned for this year. These activists are already engaged in this work. The purpose here is to network their efforts for wider impact on the national level.
The activists see in the present situation a reflection of the unfinished agenda of our freedom struggle. It is to our lasting shame that after 6 decades of independence, the government should be reduced to throwing crumbs at the poor by way of this or that welfare scheme, if only to take them all away by rampant corruption. अच्छा, हम लोग जो है इधर दिल्ली से आए हैं, कहीं से आए हैं, वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? এই হেল্প করলে আমার চিরঞ্জীবী যুগ যুগ হাজার হাজার বর্ষ আমার গুছাই বাপা খাইছি, পানি পিকর রয়েছি, কন্দা খাইছি, কলিয়া খাইছি, সেটা দেখবো না টঙ্কা 2 দিন তাকে দেখি যাব। ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमें जो हेल्प करेंगे तो आप जो कंपनी जो क्या कर रहा है आगे क्या होगा उसके बारे में हमें कुछ अच्छा जानकारी नहीं है, तो हमें कुछ आप जानकारी दीजिए। प्लस आप जो यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो कुछ लेके जो जा रहे हैं बाहर, आप उसको दिखाइए कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अगर हमारा बात को अगर दिल्ली पे तो पहुँचाते हैं, हमारा बात अगर बाहर तक पहुँचाते हैं, तो कंपनी अगर बंद होगा तो ये हमारा बहुत बड़ा हेल्प। क्योंकि वो अगर गलत काम कर रहे हैं और हमें पहाड़ को बचाना है तो सब कुछ तरीका यूज़ करना पड़ेगा। कुछ भी अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है, उनको बोलो पैसा हाँ आपके साथ रहेंगे, पैसा तो लो, उसके बाद बाकी इसके साथ यहाँ पे रहो, समझ गए? उनको अपने साथ रखो, अपने साथ प्यार रखो। आर गोटे कथा पैसा दे करी आम सपटे थाओ बोलिकर से कहबा, आमे जदि सेने के जीवु आमे आपे आपे तार पार्टी रे पले जीवु, आमे तार पैसा खाइबो नहीं कि तार जगह के जीवु। ये बोल रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे कि ठीक है तुम हम कुछ पैसा दीजिए हम लेंगे, आपके साथ हैं बोलेंगे, लेकिन हम ये करेंगे, लेकिन ये तो झूठ है ना, ये हम अपने आप को कैसे झूठ बोलेंगे? हम अगर हम उसका पैसा लेंगे तो हमें उनका काम करना ही पड़ेगा। People of India deserve better, and they are beginning to fight for it. We want to stand with them in their quest for Puran Swaraj, as envisioned by the freedom fighters, an idea that was abandoned by the post-independence leaders, seduced as they were by state power. It is time to reverse that. There is no better way to help India's poor.